So far we have seen structure of the eye, and then working of the eye, and during the working of the eye we had emphasized on the changing shape of the lens. Understood? Because of function of the ciliary muscles, the shape was changing because of function of the ciliary muscles, and based on the function of the ciliary muscles and change of the shape of the lens, we were able to see the closer as well as farther distance object. ठीक है. Now लेंस की क्या कैपेसिटी है, कितना वो अपने को एडजस्ट कर सकता है, इसका भी एक सिलरी. इफ यू वांट टू राइट, if now so a particular lens, a ciliary muscle has own capacity, how much they can relax, how much they can contract. Based on that concept we will define the power of accommodation. What is power of accommodation? What is the power of accommodation? Power of accommodation is defined as the ability or the property of the eye lens. It is basically for the eye lens कि कितना ये चेंज हो सकता है, कितना ये अपनी फोकस लेंथ को चेंज कर सकता है बाय चेंजिंग द शेप ऑफ लेंस. ठीक है. सो द एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, because when the ciliary muscles are relaxing and contracting, the shape of the lens is changing. It means focus length is changing to make the sharp image on the retina, or to make us enable to see the object clearly. So that ability or property of the lens to adjust the focal length due to changing its shape with the help of the ciliary muscles so as to see far or closer objects clearly is known as the power of accommodation. Accommodation का मतलब आप यहाँ पे कंसेप्ट समझो कि how much it can accommodate. Understood? You try to clear your concept. Power of accommodation का मतलब how much it can accommodate. It means how much it can change its focal length. How much it can change its thickness. Or how much ciliary muscles can change or adjust the thickness and focal length of the lens. That is behind the concept of the power of accommodation. So जितना वो चेंज कर सकता है, जितना उसको चेंज करने की एबिलिटी है या उसकी प्रॉपर्टी है, उसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहेंगे. सो बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है. अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका तो आपने नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है. पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ठीक है. एंड दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द लेंस. ठीक है. So again मैं पढ़ देता हूँ. The ability or property of the eye lens to adjust its focal length due to changing its shape. Focal length क्यों चेंज हो रही है? Shape चेंज हो रही है. Shape क्यों चेंज हो रही है? With the help of the ciliary muscles. So as to see the far or closer. Far का मतलब distant object. ठीक है. Closer object नजदीक वाले object. Clearly is known as the power of accommodation. Based on this concept, we will define now. नियर पॉइंट के हम नजदीक का कितना देख सकते हैं. व्हाट इज द एबिलिटी और पावर ऑफ अकोमोडेशन फॉर द नियर पॉइंट क्लोजर ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट इज द एबिलिटी और पावर ऑफ अकोमोडेशन फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो यहाँ पे दो कंसेप्ट निकल करके आते हैं. नियर पॉइंट ऑफ द आई. दो क्वेश्चन रेज होते हैं कि ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन को जब डिफाइन कर रहे थे तो आप कितना नजदीक से नजदीक की चीज को पढ़ सकते हैं, कितना दूर वाली चीज को देख सकते हैं, या कितना नजदीक वाली चीज को देख सकते हैं. उसके बेस पे दो कंसेप्ट, दो डेफिनेशन निकल करके आती हैं. नियर पॉइंट ऑफ द आई और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस जिसके पास तक या जिस पर ऑब्जेक्ट रखने से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं. सो दैट विल बी कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस. जैसा मैंने बोला सेम ऐसी डेफिनेशन हो गई. द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द नियरेस्ट पॉइंट for which the image of an object can be formed clearly on the retina. यानी कि वो डिस्टेंस जिसके ऊपर नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को रखा जाए, आई से, आई के और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस, और हमें क्लियर
फिगर उसकी दिख जाए, क्लियर इमेज हमारी रेटिना पे बन जाए, क्लियरली हम उसको पढ़ सके। दैट डिस्टेंस इज नोन एज द नियर पॉइंट डिस्टेंस और लीड डिस्टेंस। आगे और लिखते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा और डिफाइन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि कम से कम डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन वाली, डिस्टिंक्ट का मतलब साफ, क्लियर, ठीक है, इज डिफाइंड एज द, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, मिनिमम डिस्टेंस जिसके ऊपर रखने से ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है। मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट स्ट्रेन। ऐसे तो आप बोलेंगे सर मैं तो इसको भी देख पा रहा हूँ, बट इसको जब देख रहा हूँ तो मेरे आईज पर स्ट्रेन पड़ रही है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट फ्रॉम द आई, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसको थोड़ा सा हम लोगों ने आगे सिंप्लीफाई किया, साइंटिस्ट ने इसकी थोड़ी फिगर क्लियर कर दिया। फिगर क्या क्लियर कर दिया कि अगर हम यंग अडल्ट एज है, आई में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर के ऊपर यंग अडल्ट विदाउट एनी डिफेक्ट आईज को रख के पढ़ेगा तो हम आपकी आईज पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो, डोंट बेंड टुवर्ड द स्क्रीन, कीप मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द 25 सेंटीमीटर, अदरवाइज आपको प्रेशर है काम को करने का माइंड में, जिसकी वजह से आप काम लगातार कर रहे हैं, ठीक है, बट अंदर आपके फंक्शन में क्या हो रहा है, आईज में प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेन पड़ रही है, वो उसकी वजह से आपको 1 घंटा काम करने के बाद, 2 घंटे काम करने के बाद, या फिर 1 महीने तक ऐसे काम करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी आईज में कोई डिफेक्ट क्रिएट होने शुरू हो गए। तो इसलिए बोला जाता है कि कीप योर पोस्चर स्ट्रेट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो क्या बोलते हैं यहाँ पे, इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर द यंग आई, दैट इज फॉर द यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन, मीन्स विदाउट डिफेक्ट विजन, ओके। नाउ हाउएवर एज द एज ऑफ द ह्यूमन आई इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, नियर पॉइंट ऑफ द आई इंक्रीजेस, स्टिल वी आर वर्किंग सेइंग अबाउट द नॉर्मल विजन, नॉट द डिफेक्टिव आईज, ठीक है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ हमारी जो नियर पॉइंट वाला डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। 25 के बाद कोई 30 के ऊपर भी साफ पढ़ पा रहा है, कोई 40 के ऊपर भी साफ पढ़ पा रहा है, ठीक। अब देखिएगा आप क्या बोलता है ये, फॉर द ओल्ड एज अप्रोक्स 60 ईयर्स की एज के आदमी जिसकी आईज में कोई मायोपिया और ये डिफेक्ट नहीं है, तो आपको नियर पॉइंट जो है वो लगभग 200 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि 2 मीटर के आसपास आपका नियर पॉइंट बन जाता है, ठीक है। फॉर अ चाइल्ड ऑफ 10 ईयर, छोटा बच्चा है, उसके लिए नियर पॉइंट अप्रोक्स 7 to 8 सेंटीमीटर रहता है। दिस डाटा इज गिवन इन द बुक, ठीक है, मे बी यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव टाइप, बट नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, ओके ओके। अब इस जितना आपने ऊपर तक पढ़ा, इसके बेस पर क्या बोल सकते हैं, thus the least distance of the distinct vision, जिसकी बात कर रहे थे हम, varies with the age of the eye. This fact is given in the book NCERT, कि जैसे जैसे ह्यूमन एज बढ़ती है आपका नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इंक्रीज होता है, एक लाइन लिखा है बुक के अंदर, ठीक है। एज द एज ऑफ द आई इंक्रीजेस, एज ऑफ द आई इंक्रीजेस मींस एज ऑफ द ह्यूमन इंक्रीजेस, ठीक। द नियर पॉइंट ऑफ आई इंक्रीजेस, यानी कि जो नियर पॉइंट था उसका 25 सेंटीमीटर यंग एज में था, वो बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिलरी मसल, यानी कि सिलरी मसल्स जो थी यहाँ पर उनकी इफेक्टिवनेस धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, सिलरी मसल्स का इफेक्टिवनेस, यानी कि सिलरी मसल्स में जो फोर्स के साथ थोड़ा सा दबा के रखा हुआ था, जो स्प्रिंग एक्शन था उसके अंदर, वो धीरे धीरे लूज होता चला जाता है। जब वो लूज होता चला जाता है, इसका मतलब सिलरी मसल्स रिलैक्स होती चली जाती है। रिलैक्स का मतलब जब सिलरी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो क्या होता है, थिकनेस उसकी कम होती चली जाती है। जब थिकनेस कम हो जाती है तो फोकल लेंथ बढ़ती चली जाती है, और जब फोकल लेंथ बढ़ती चली जाती है तो दूर का भी उसका
साफ दिखने लगता है उसको, यानी कि नियर पॉइंट जो उसका चेंज होकर के दूर में चला जाता है। तो इसने क्या बोला इसीलिए, thus the least distance of the distinct vision varies with the age of the eyes. As the age of the eye increases, the near point of eye increases because of the decreasing the effectiveness of the ciliary muscles and the loss of flexibility of the lens. लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है, सिलेरी मसल्स की इफेक्टिवनेस कम होती चली जाती है, ठीक, तो लेंस हमारा पतला होता जाता है। देन हमने क्या बोल दिया है कि द सिंबल ऑफ द नियर पॉइंट इज डी, जनरली हम इसको डी से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ कम टू द फार पॉइंट ऑफ द आई और फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। ये कितना दूर का हम साफ देख सकते हैं, फारदेस्ट का मतलब दूर से दूर, और जनरली इसको हम को इन्फिनिटी लेके चलते हैं। सो ये बिल्कुल सिंपल है, इसी के अंदर थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। लीस्ट वाले पर आपके इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द नियर पॉइंट विजन ऑफ यंग एडल्ट आइज, ठीक है। हाई द नियर पॉइंट चेंजेस एज द चेंज ऑफ द आइज, रीजन दे देगा उसके 3-4, कोरोना का दे देगा, कुछ और पीपल्स का दे देगा, आइरिस का दे देगा, एक ये भी बना देगा कि रिलैक्स मसल की फैक्टनेस कम होती चली जाती है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन बना सकता है। सो योर कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर फ्रॉम ऑल एंगल्स, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे फार पॉइंट की और फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर विजन की। द फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई इज द फारदेस्ट पॉइंट up to which the human eye can see the objects clearly and distinctly, ठीक है। और ये हम जनरली नॉर्मल पॉइंट के लिए, नॉर्मल आइज के लिए फारदेस्ट पॉइंट या इन्फिनिटी मान के चलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों कंसेप्ट के बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन आई है विद द नॉर्मल विजन विदाउट डिफेक्ट कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर प्लेस्ड बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी, यानी कि 25 सेंटीमीटर एंड देन बियॉन्ड दैट वो ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख सकते हैं। दिस इज द रेंज, दिस इज आल्सो वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज द रेंज ऑफ द ह्यूमन आई विद द नॉर्मल विजन? दैट इज 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, 200 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, 5 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, और नन ऑफ द अबव। लाइक दैट क्वेश्चन भी दिया, सो यू हैव टू राइट 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, ठीक है। concept are going to be clear or not? Because बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप से दे रखा था एंड वी आर राइटिंग दिस इन डिटेल, थोड़ा टाइम लग रहा है हम लोगों को, बट हम लोग ऐसे करके चल रहे हैं कि जब आप इनको रीड करेंगे और पढ़ेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो, तो ये आपको थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएंगे और याद भी रहेगा, और आपको पता रहेगा कि इसका क्या रीजन है। वी आर रिलेटिंग, वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग विद सम रीजन, ठीक है। नॉट लाइक दैट कि पहले कुछ लिख दिया बाद में कुछ लिख दिया, जैसे एनसीईआरटी ने कहानी लिखी। सो any doubt? Good. You write this now.